Good morning, students. Again, I am here to welcome all of you in online classes of science. Students, at present we are studying transportation. In this chapter, we have studied about transportation in animals like human beings. In human beings, we have studied how transportation takes place. In human beings, transportation of various gases, excretory material, digested food material takes place through blood. We have studied that blood is a liquid connective tissue. This blood flows into what? Flows into pipe-like structures which are found in our body. These pipes are of two types. First one is blood vessels. These blood vessels are of two types. First one is blood arteries and second one is blood vessels. इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. Now today I want to discuss with you about transportation in plants. How transport takes place in plants. ठीक है. For transportation purpose, plants have a very unique organ named as vascular bundle. Vascular bundle. Students, what is this vascular bundle? Actually, vascular bundle is made up of two special kind of tissues. First, xylem, and second one is phloem. ध्यान से सुनिएगा, हम दो लाइन में अभी इसको बता देंगे और आप बार-बार वीडियो देख के इसको पॉज करके समझ लीजिएगा खूब अच्छी तरह से. Xylem and phloem are combined together to make vascular bundle. This vascular bundle is responsible for transport of various substances inside any plant. Xylem is responsible for transport of water and mineral from soil to leaves. फिर से सुनिए. Xylem is responsible for transportation of water and mineral from soil to leaves for the purpose of photosynthesis. ये बात समझ में आई. अब phloem का भी फंक्शन जान लेते हैं. Phloem is responsible for transport of prepared food material during the process of photosynthesis from leaves to various parts of plants. दोनों का अलग-अलग फंक्शन. Xylem is responsible to conduct water and mineral from soil to the leaves, and phloem is responsible for conduction of prepared food material during the process of photosynthesis from leaves to various storage organs of plants. हमने आपको पहले भी बताया, प्लांट का स्टोरेज ऑर्गन कुछ भी हो सकता है. कुछ प्लांट्स में उनका स्टोरेज ऑर्गन उनका रूट होता है, जैसे रेडिश में, कैरेट में, टर्निप में. कुछ प्लांट्स में उनका स्टोरेज ऑर्गन उनका स्टेम होता है, जैसे शुगर केन में, जैसे पोटैटो में, जैसे ओनियन में, जैसे गार्लिक में. कुछ प्लांट्स में उनका स्टोरेज ऑर्गन उनकी लीव्स में होती है. फॉर एग्जांपल कोरिएंडर लीफ, स्पिनाच लीफ, रेडिश लीफ, ऑल दिस थिंग. कुछ प्लांट्स में उनका स्टोरेज ऑर्गन फ्रूट होता है. फ्रूट लाइक मैंगो, लाइक गुआवा, ऑल दिस थिंग्स. एंड सम प्लांट्स storage organ are found inside their seeds, like all cereals. जितने भी cereals हम लोग खाते हैं, wheat, rice, maize, all these cereals contain reserve food material inside their seeds. ठीक है जी, ये बात समझ गए. So in plants various materials, minerals, waters, prepared food material during the process of photosynthesis, they all are transported by a special type of tissues present inside the plant which are known as xylem and phloem. This xylem and phloem combine together to form vascular bundle of any plant. चलिए अब आगे आते हैं डिफ्यूजन. आपकी बुक में डिफ्यूजन लिखा हुआ है. व्हाट इज डिफ्यूजन? लेट्स नो व्हाट इज डिफ्यूजन. ये मान लेते हैं प्लांट का रूट है. ये मान लेते हैं प्लांट का रूट है. ठीक. ये सॉइल है,
इसके ऊपर ये स्टेम हो जाएगा, इस स्टेम में से ब्रांचेस निकल जाएंगे ढेर सारी, जो भी है ये मान लेते हैं रूट है। और तो हम कह रहे हैं कि हाँ एक बात और बता दें आपको, ये वैस्कुलर बंडल प्लांट्स में हर जगह प्रेजेंट होता है, यानी वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, सब जगह ये वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, क्योंकि फूड की नीड और वाटर और मिनरल की नीड प्लांट को हर जगह होती है, इसलिए वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इनसाइड द प्लांट। नाउ कम टू द यूजर्स, सपोज दिस इज रूट ऑफ एनी प्लांट एंड दीज आर सॉइल पार्टिकल्स। In between soil molecules here some water and mineral is present. अब ये वाटर और मिनरल उसमें कैसे जाएगा, रूट के भीतर कैसे जाएगा, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किया जाता है रूट के भीतर। जैसे हम आपको बता देते हैं डिफ्यूजन किसको कहते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल की तरफ कोई भी चीज जाती है, लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल, तो कोई भी मटेरियल हो वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको बता दें, अगर आप अपना जो फ्रेगरेंस का बॉटल रखे हैं घर में छिपा के, आपके पापा आपकी मम्मा रखी हुई है फ्रेगरेंस की बॉटल, अरे सेंट की बॉटल रखी है, उसका अगर हम लीड ओपन कर दें और इस क्लास में या आप अपने कमरे में जहां आप हैं उस रूम में उसका लीड ओपन करके कहीं रख दें, तो 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद क्या होगा, उस एसेंस की, उस फ्रेगरेंस की जो स्मेल है, गुड स्मेल है उस फ्रेगरेंस की, वो पूरे रूम में पहुंच जाएगी। क्यों? आपने पूरे रूम में स्प्रे तो नहीं किया था, फिर कैसे पहुंच गई? इसी प्रोसेस से पहुंची, डिफ्यूजन प्रोसेस से। समझाते हैं आपको, उस परफ्यूम की बॉटल के भीतर, उस सेंट की बॉटल के भीतर, परफ्यूम की बॉटल के भीतर वो परफ्यूम कैसा था, कॉन्सेंट्रेटेड था, यानी कि उस परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन उस बॉटल में बहुत हाई था, और सराउंडिंग एयर में उस परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं था या बहुत कम था। तो हम कह रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, यानी बॉटल से एयर में उस फ्रेगरेंस की स्मेल जाएगी। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसा ही होता है जब आप कभी त्योहारों के दिन निकल जाते हैं अपने घर के अगल बगल, अपने पड़ोस में, तो क्या होता है, अगर किचन सड़क की तरफ है किसी का और किचन में कुछ पक रहा है, तो आपको स्मेल आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है राइस की और सब्जियों की, खूब अच्छी सी स्मेल। तो वो स्मेल उसके किचन से आपके पास कैसे पहुंच गई? क्या उसने फेंक दिया उठा कर? नहीं, ड्यू टू डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन में उसके किचन में वो स्मेल मौजूद थी और लो कंसंट्रेशन में एयर में, एटमॉस्फेयर में मौजूद थी। हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो स्मेल लोअर कॉन्सेंट्रेशन में गया। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। वही चीज़ हम हमको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रूट के भीतर मिनरल और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम था, रूट के बाहर सॉइल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वाटर और मिनरल था उसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक था। तो अधिक कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, यानी सराउंडिंग सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से रूट के वैस्कुलर बंडल में क्या जाएगा? वाटर और मिनरल। बहुत सिंपल प्रोसेस है डिफ्यूजन का, बहुत सिंपल प्रोसेस। इसी प्रोसेस से ये वाटर और मिनरल चलाएगा रूट में, रूट से चला जाएगा रूट के जाइलम फ्लोएम में, जाइलम में जाएगा तो फ्लोएम में, बताइए जाइलम में, बिकॉज जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू लीफ। यही आपको बताया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ से वो वाटर और मिनरल गया रूट के जाइलम में, और रूट के जाइलम से चला गया सीधा जहाँ पे लीफ है वहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि लीफ को नीड होती है वाटर और मिनरल की। क्यों? क्योंकि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है जी।
फोटोसिंथेसिस वहीं होता है जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, और क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है लीव्स। इसी वजह से लीव्स को कहा गया है प्लांट्स का किचन। लीफ सेल को या क्लोरोफिल पिगमेंट को कहा गया है किचन ऑफ द प्लांट। समझ में आ रहा है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, वेल अंडरस्टूड अबाउट डिफ्यूजन। Water and mineral used to move by the process of diffusion from soil to leaves। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस के बारे में। What students about photosynthesis we will study in later online class. This is all for today. Your today's homework is revise about diffusion, revise about vascular bundle, revise about xylem and phloem. Whatever we have studied today, revise very thoroughly. This is your homework, not written homework, this is oral homework. इसको जरूर रिवाइज करिए। हम इससे आपको क्वेश्चंस देंगे करने के लिए। अभी आपको पीछे कल भी दिए थे आपको क्वेश्चन करने के लिए। आज आपका वीडियो जा रहा है, फिर नेक्स्ट डे आपको हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है? This is all about transportation in plants by the process of diffusion. Now what is photosynthesis? We will study in later online classes, friends. Stay home and be safe. Thank you, class 7. Thank you.